السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل۔ کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں زہرا فاروق حسن کے قلم سے تحریر کردہ ناول درد دل کی دو دوا کی ایپیسوڈ نمبر 72 کو لے کر۔ لیکن اس ایپیسوڈ سے پہلے جلدی سے کیجیے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجیے بیل آئیکن کو، تاکہ آپ کو اس ناول کی ہر نئی اپلوڈ ہونے والی قسط کی نوٹیفیکیشنز فوراً موصول ہو سکے۔ اب آتے ہیں قسط کی جانب۔ واو، یہاں تو ایک اور لو سٹوری چل رہی ہے۔ میں تو نکاح میں شامل ہونے کے لیے آئی تھی، مگر یہاں تو نکاح سے پہلے ہی کسی اور کے ساتھ پریکٹس چل رہی ہے۔ مبین اور نوشی کو دیکھتے ہوئے نگار نے کہہ کر بڑے زوردار انداز میں سیٹی ماری۔ مبین جیسا مضبوط اعصاب کا مالک بھی اس حالات سے گھبرا سا گیا۔ نوشی کی تو پہلے ہی سے حالت خراب تھی، اب تو جیسے کانٹوں بدن خون نہیں والی حالت ہو چکی تھی۔ دیکھو زین، ایسا کچھ نہیں ہے، میں تمہیں سب بتاتا ہوں۔ مبین کو حالات کس طرح ان کے خلاف بنائے جا رہے تھے سب نگار کی آنکھوں میں نظر آ رہا تھا۔ اسے سمجھتے ہوئے دیر نہیں لگی تھی کہ وہ بڑے آرام سے دونوں کو اپنے جال میں پھنسا چکی تھی۔ کیا بتاؤ گے زین کو تم؟ یہی نا کہ تم بس گواہ کے طور پر یہاں آئے تھے، اور تم سے ہی پہلے یہاں کوئی اور آ گیا تھا جو بیچاری نوشی کی عزت لوٹنے کی کوشش کر رہا تھا، اور تم اسے بس اس شیطان سے بچا کر اب سینے سے لگا کر تسلی دے رہے تھے۔ یہی کہانی گڑھنے والے تھے نا تم؟ نگار بڑی مکاری سے بولتی مبین کو مسکراتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ مبین کا دل کیا بھی کہ ابھی اس عورت کا گلا دبا دے، مگر فی الحال اسے صرف نوشی کی فکر تھی۔ زین، میرا یقین کرو، واقعی ایسا ہوا ہے۔ میں بکواس بند کرو اپنی۔ مبین کے آگے بولنے سے پہلے ہی زین غصے اور نفرت سے چیخ اٹھا۔ وہ تیزی سے مبین تک آیا تھا اور اس نے مبین کے کچھ سمجھنے سے پہلے ہی ایک زوردار مکہ مبین کے منہ پر دے مارا تھا۔ نوشی نے اپنے لبوں پر ہتھیلی رکھ لی۔ مبین کے ہونٹوں سے خون نکل آیا، مگر وہ اپنی جگہ مضبوطی سے کھڑا زین کو اب بھی سمجھانے کی کوشش کرنے لگا۔ زین، ایک بار ٹھنڈے دماغ سے میری بات سن لو۔ میں جانتا ہوں تم اس وقت بہت غصے میں ہو، مگر ایک بار پلیز میری بات سن لو۔ وہ بڑی برداشت سے زین کو اشتعال کو سرد کرنے کی کوشش کر رہا تھا تاکہ نگار کی حقیقت اسے بتا سکے۔ تم جیسے ذلیل شخص کی میں اب شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ تم بات سننے کی بات کر رہے ہو؟ زین اس وقت اپنے آپ میں نہیں تھا۔ اس کے خود کی سوچنے سمجھنے کی طاقت کو شک نے نگل لیا تھا۔ بجائے مبین کی بات سننے کے، وہ بری طرح سے بھڑک کر اس نے مبین کا گریبان تھام کر ایک بار پھر اسے مکہ دے مارا تھا۔ زین اسے بری طرح سے مار رہا تھا، مگر مبین اب بھی ضبط کرتا اس کی مار کھاتا اپنی بات سمجھانے کی کوشش میں لگا تھا۔ نہیں زین، پلیز اسے مت مارو، پلیز زین اسے مت مارو۔ زین کی مار سے مبین کو زخمی ہوتے دیکھ کر نوشی تڑپ کر ایک دم سے روتی ہوئی اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہو گئی۔ زین کی لہو رنگ آنکھیں نوشی پر آ ٹکیں، اس کے بکھرے بال، زخمی ہونٹ اور تن پر مبین کی شرٹ۔ اس کے دل میں نفرت کی ایک آگ بھڑک گئی۔ مبین کا گریبان جھٹک کر وہ خون اگلتی آنکھوں سے نوشی کی طرف رخ موڑ کر اس کی روتی آنکھوں میں اپنی شعلہ بھر نگاہوں کو گاڑ کر بولا، تمہاری ہوس اگر مٹ نہیں رہی تھی تو مجھ سے کہہ دیتی، یا کسی بھی گلے میں کسی آوارہ کو پکڑ لیتی، وہ تیری آگ سرد کر دیتا۔ کم سے کم میرے ہی دوست سے اپنے نفس کی آگ تو نہیں بجھاتی تم۔ وہ الفاظ نہیں تھے، وہ تیزاب تھے جس نے نوشی کو چھلنی چھلنی کر دیا تھا۔ اس کی آنکھیں پتھر ہو گئیں۔ وہ بت بنی اس دیوانے کو دیکھ رہی تھی جس نے کبھی عاشقی کا دعویٰ کیا تھا، جو اس کی محبت میں فنا بھی ہو سکتا تھا، مگر اس کا اعتبار کچی مٹی کی دیوار جیسا نکلا۔ ایک ہی ٹھوکر میں دیوار مٹی ہوئی قبر کا نشان بن گئی۔ نگار آرام سے دیوار سے ٹیک لگائے سینے پر ہاتھ باندھے دونوں کو دیکھتی اپنے دل میں سکون سے اترتا محسوس کر رہی تھی۔ خود مبین کو شوق لگا تھا جس طرح سے زین نوشی کا عاشق تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا وہ اپنی محبت پر ہی یقین کھو دے گا۔ کم سے کم نوشی کے لیے ایسے گرے ہوئے جملے تو نہ استعمال کرتا۔ مجھے تم سے زیادہ خود سے گھن آ رہی ہے جو میں نے تم جیسی گری ہوئی لڑکی سے محبت کی، اسے پاکیزگی کی مورت سمجھ کر پوجا، عقیدت سے چھوا، مگر مجھے معلوم نہیں تھا کہ تم اس قدر گری ہوئی ہو کہ تمہارا کبھی ایک مرد سے دل بھر ہی نہیں سکتا۔ کل تک تم فائق کی باہوں میں اپنی ہوس پوری کر رہی تھی، اور آج اس ذلیل کے ساتھ اپنی بھوک مٹا رہی ہو، اور نہ جانے اور کس کس کے ساتھ۔ زین، وہ اپنی زبان کے تیروں سے نوشی کے کردار کو تار تار کر رہا تھا کہ مبین کی برداشت ختم ہو گئی۔ اس نے بڑھ کر زین کا گریبان تھاما اور پوری شدت سے اس کے منہ پر ایک مکہ دے مارا۔ تیری ہمت کیسی ہوئی نوشی کے بارے میں ایسی گری ہوئی بات کہنے کی؟ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا تو اتنا گھٹیا ہے۔ غصے سے اس کی گریبان کو مٹھی میں جکڑے ہوئے چلایا۔ مبین کا خون کھول رہا تھا اور زین نے استہزائیہ مسکراہٹ کے ساتھ مبین کو دیکھا۔ کیوں؟ تجھے کیوں برا لگ رہا ہے؟ کہ اس نے تجھ سے بھی محبت کے دعوے کیے ہیں؟ اپنی گریبان کو اس نے مبین کے ہاتھ سے چھڑائے بغیر وہ اسی طرح سے طنز سے ہنسا، پھر معصوم بن کر بولا، ارے ارے رک، کہیں تو بھی تو اس سے محبت نہیں کر بیٹھا؟ کہیں تو نے اس کے ساتھ نفس کے سودے کے ساتھ ساتھ دل کا بھی تو سودا نہیں کر دیا؟
गिरेबान थामे हुए मुबीन को वो बड़े तंजिया नज़रों से देखता तमस्खर अमेज़ लहजे में बोल रहा था। हाँ करता हूँ मोहब्बत, बहुत मोहब्बत करता हूँ, मुबीन ने चीख कर एतराफ़ कर डाला। नौशी ने जलती आंखें बंद कर ली और निगार का दिल चाहा वो खुशी से झूम उठे। उस बेवकूफ़ के इजहार ने और भी काम आसान कर दिया। मुबीन पूरे जलाल से जैन पर चीख रहा था, तेरे चाहने से पहले इससे मोहब्बत करता हूँ, मगर मेरी मोहब्बत यकतरफ़ा है। लेकिन इस यकतरफ़ा मोहब्बत में भी मैं इस मासूम लड़की पर ख़ुद से ज़्यादा एतबार करता हूँ। कोई आसमान से भी उतर कर उसके ख़िलाफ़ गवाही देना, फिर भी मैं उस लड़की को गलत नहीं कहूँगा। मुबीन ने उसका गिरेबान झटक दिया। मगर तेरी मोहब्बत तो दो तरफ़ा थी, तो इसे खुद से ज़्यादा चाहता है। तो क्या तेरी मोहब्बत इतनी कच्ची है कि तू टके टके के लोगों की बातों पर भी यकीन कर ले? वो एक निगाह निगार को देखकर जैन से अब भी गुस्से से बोल रहा था। ओके, मैं गलत सही, तुम दोनों पाक साफ। तू अपनी यहाँ मौजूदगी की जो कहानी सुनाएगा मैं यकीन कर लूँगा। तू कहेगा ये लड़की पाक है, मैं आंखें बंद करके मान लूँगा, मगर तू फिर ये बता ये सब क्या है? जैन ने कहते साथ अपनी जीन्स की पॉकेट से कुछ फ़ोटोज़ निकाल कर उसके सामने खड़े मुबीन के ऊपर उछाले। सारी तस्वीरें मुबीन से टकराकर उड़ती हुई कदमों में गिरने लगी। कुछ नौशी के पास भी कदमों तक गई थी। उसने झुककर कांपते हाथों से एक फ़ोटो उठाया। ये उस दिन के फ़ोटो थे जब नौशी के हाथ से फ़ोटो फिसल कर कदमों में गिर गया। ये मुबीन खुद शौक था। होटल वाली रात को बड़ी खूबसूरती से गलत रंग दे दिया गया था। कोई भी बड़े आराम से यकीन कर लेता कि वह दोनों उस रात एक साथ गलत अंदाज में थे। मुबीन ने अपनी पेशानी मली। उसने एकदम से निगार की तरफ देखा। उसका देखना था कि निगार ने बड़ी खबासत से मुस्कुराते हुए उसे आंख दे मारी थी। कह दो, उस दिन भी तुम उसे बचाने के लिए गए थे। उस दिन भी किसी ने तुम दोनों को फंसाना चाहा था। और साथ में मुझे ये भी बता दो कि जब तुम दोनों का कोई अफेयर नहीं था तो तुम एक साथ उस बंगले पर क्यों? जैन नफरत की आग में बिल्कुल अंधा बन गया था। वो ये भी समझ नहीं पा रहा था कि अगर उन दोनों के बीच कुछ होता भी तो और जिसे वो छुपाना चाहते हैं तो क्यों उसे फ़ोटोज़ भेजेंगे? जैन, मैं नहीं जानता उस दिन किसने ये फ़ोटोज़ ली, ये किसका बंगला है? जैन ने सिर्फ एक बार नफ़रत से परे होकर सोच और हाँ कह दो कि ये मेरा बंगला है। इसे समरा लेकर आई थी और फिर हमें नहीं पाकर वो फ़ोन करने चली गई थी बेचारी नौशी को छोड़कर। और कोई शैतान सिफ्त आ गया और तुम खुदाई फ़ौजदार बनकर नौशी की इज्जत बचाने पहुँच गए। मुबीन की बात पूरी होने से पहले ही निगार की ज़बान चलने लगी। कितनी आराम से वह हकीकत को झूठ में तब्दील करके मुबीन और नौशी को गलत साबित कर रही थी। मुबीन के जबड़े कस गए और नौशी की आंखों से दरिया बह रहा था। वो क्या बोले, क्या सफाई दे, क्या समझाए, जब सामने खड़े शख्स की आंखों में सिवाय नफ़रत और शक के अलावा कुछ और था ही नहीं। बल्कि सच तो ये है जैन कि ये मेरे कज़न साहिल का बंगला है, वह यहाँ तन्हा रहता है और तुम दोनों उस नौशी के बॉयफ्रेंड हो। अक्सर तुम तीनों एक साथ यहीं मिलते रहे हो। निगार पूरी तरह से अपना बनाया हुआ जाल नौशी और मुबीन के इर्द गिर्द कस रही थी। ये झूठ है, तुम्हारी ये मक्कार कज़न झूठ बोल रही है जैन, ये सब इसका ही प्लान है। ये सिर्फ तुम्हें नौशी से अलग करने के लिए कहानी घड़ रही है। मुबीन निगार को कच्चा चबा देने वाली निगाहों से देखता पूरी आवाज़ से चिल्लाया। अच्छा, मैं झूठ बोल रही हूँ? तुम रुको, अभी सच क्या सब जाहिर हो जाएगा। साहिल, साहिल, निगार ने कहते हुए साहिल नामी इंसान को आवाज़ दी। एक ही लम्हे में साहिल नामी शख्स उस रूम में दाखिल हो गया। उसे देखते ही नौशी की आंखों से आंसू बहना बंद हो गए। वो खुली आंखों से उस खबीस को देख रही थी। क्यों मेरे दोस्त, तुम मुझे नहीं पहचानते? और नौशी डियर, क्या तुम मुझे नहीं जानती? वो खबासत से मुस्कुराता नौशी और मुबीन से मुखातिब था और वो दोनों गंग से उसे देख रहे थे। तुम? नौशी के होंठों ने जुम्बिश की। तो तुम इसे नहीं जानती? उसकी आंखों में पहचान के रंग साफ दिखाई दे रहे थे। जैन की आंखों में अब खून छलक जाना चाहता था। ये नौशी का चेहरा सफ़ेद हुआ जा रहा था। जैन, यकीन करो हम तीनों को इस गेम में फंसाया जा रहा है। मैं तो सिर्फ बस तुम्हारे निकाह में शामिल होने आया था। मुबीन अब भी जैन को समझाना चाहता था। किसने बुलाया था तुम्हें निकाह में? मैंने कहा था तुमसे कि तुम मेरे निकाह में आओ। बोलो, किसने बुलाया? जैन धाड़ा तो मुबीन चुप सा हो गया। अब उसे यकीन हो गया था उसे नौशी ने नहीं बुलाया, बल्कि ये भी निगार की ही चाल रही होगी। ज़िंदगी में पहली बार वो खुद को पूरी तरह से बेबस पा रहा था। जैन, तुम यकीन करो या ना करो, तुम्हें इस लड़की ने अपने जाल में फंसाया है जैसे मुझे फंसाया हुआ था। साहिल को जैसे ही निगार ने इशारा दिया वो तोते की तरह शुरू हो गया। जैन सब सुनते हुए बुद्ध बने नौशी को नफरत से देख रहा था। इस लड़की का तो यही काम है। ये लड़की और इसका यार ये मुबीन तुम दोनों के साथ धोखा कर रहे थे। ये लड़की तो इतनी गिरी हुई है कि एक साथ कई कई आशिकों को अपने पीछे लगाए रखती है। मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं इसे इस्तेमाल कर चुका। मगर तुम्हारे लिए तो बड़ी गैरत की बात होगी। ऐसी लड़कियां तुम जैसे शरीफ इंसान को सूट नहीं करती। ये तो तू कमीने राज में तेरी जान ले लूँगा। मुबीन उसकी घटिया बातों से भड़क कर उस साहिल पर झपटा और उसने कुछ ही लम्हों में उसे लातों पर रख दिया। क्या हो रहा है यहाँ?
रूम में एक गूंजदार धाड़ से सारा माहौल साकित हो गया और एक बार फिर नौशी की पथराई आंखें दरवाजे की तरफ उठी और फिर वहीं ठहर गई। उसका दिल फरियाद करने लगा, ए अल्लाह, अब बस, तो अब मुझे इस दुनिया से उठा लें, बस अब मेरी सांसें मुझसे छीन लें। उसका दिल रो रो कर फरियाद कर रहा था और आंखें अपने अब्बा के सदमे में डूबती आंखों से मिलकर जैसे नूर खो रही थी, लेकिन कोई फरियाद अर्श तक नहीं पहुंची। वहाँ फिर से वही सब दोहराया जा रहा था। उसके बाप और ताया के सामने निगार और समरा उसके किरदार की धज्जियाँ उड़ा रही थी। जो शख्स दीवानों की तरह उससे मोहब्बत करता था, जिसके इश्क की आग ने उसके दिल में मोहब्बत के शोले सुलगा दिए थे, वही उसके ऊपर अपनी नफ़रत का तेज़ाब डालकर उन शोलों को राख कर गया। वो उस पर थूक कर जा चुका था। वो शैतान सिफ्त साहिल उस पर कीचड़ उछालकर मुबीन से बुरी तरह से मार खाकर भाग चुका था, और जो उसका मुहाफिज था, जो सिर्फ उसके लिए लड़ रहा था, जिससे उसकी पाकीज़गी पर यकीन था, उस मुबीन को ताया बुरी तरह से मार रहे थे और वह सिर्फ और सिर्फ उसके लिए सर झुकाए मार खा रहा था। अब्बा और ताया अब उसकी तरफ बढ़े। वो अब्बा थे या ताया, नौशी को कोई खबर नहीं थी। जो कोई भी था, वो उसे बालों से खींच कर घसीटते हुए उस बंगले से बाहर ले जा रहे थे। नौशी बेनूर आंखों और मुर्दा जिस्म के साथ उन दोनों के साथ घिसट रही थी। उसकी निगाह खुद को मक्कारी और नफरत से देखती समरा पर पड़ी। आज दोस्ती के सारे राज खुल गए। कैसे दोस्त बनकर उसने अपनी एहसास कमतरी का, अपनी जलन का नौशी से ताउम्र का बदला ले लिया था। वो अब सारी ज़िंदगी नौशी से बरतर ही रहेंगी। नौशी की निगाह उससे होती निगार पर गई। जीत के एहसास से लबरेज गरूर से गर्दन ताने खड़ी निगार। क्या खूबसूरत धोखा दिया था उसने। नौशी हमेशा के लिए रुस्वा हो गई और वो सरनिगू। जैन उसका हुआ और नौशी खाली दिल और खाली दामन होने के साथ साथ मोहब्बतों से भी महरूम हो गई। सबसे होती उसकी निगाह अपने लिए नम होती, मगर मुश्किल से सब बर्दाश्त करती काली आंखों से टकराई। नफ़रत और मोहब्बत के इस खेल में सिर्फ उसके लिए उसकी भी इज्जत को दागदार हो गई। उसके चेहरे पर ज़ख्मों के निशान थे, नाक और मुंह से खून टपक रहा था, मगर आंखों में सिर्फ उसके दर्द का एहसास। नौशी को उस दर्द ने सारी ज़िंदगी के लिए अजियत दे दी। मुबीन की आंखों में देखते देखते उसकी आंखों से लहू बनकर आंसू टपके थे। उसके बाल बुरी तरह से खींच रहे थे। बहुत बेदर्दी से उसे घसीट कर ले जाया जा रहा था। उसकी इज्जत के साथ आज मोहब्बत का भी बड़ी धूम से जनाजा उठा था। नौशी का जिस्म ही नहीं उस दिन ज़ख्मी हुआ था, बल्कि उसके दिल के भी कई टुकड़े हुए थे। रूह तक पर भी नील पड़ गए थे, और ये ज़ख्म ऐसे थे कि ताउम्र न उस पर फ़ाइक की शदीद मोहब्बत मरहम रख पाई, न मुबीन की खालिस मोहब्बत दवा बन पाई। जब जब उस ज़ख्म को वक्त ने उधेड़ा, ज़ख्म हरे हो गए और नौशी लहूलुहान हो जाती थी। जी तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको आज की एपिसोड? उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। फिर हाजिर होंगे नॉवल की नई किस्त